کیا آپ ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی وزن کم نہیں کر پا رہے؟ شاید مسئلہ آپ کی محنت میں نہیں بلکہ ان چھپی ہوئی وجوہات میں ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آج ہم بتائیں گے وہ 10 خفیہ رکاوٹیں جو آپ کے وزن کم کرنے کی راہ میں دیوار بنی ہوئی ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور کوئی بھی حصہ مس نہ کریں۔ وزن کم کرنا صرف ڈائٹ پلان یا ایکسرسائز تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جس میں خوراک، نیند، ذہنی سکون، جسمانی سرگرمی اور بہت سی دوسری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ سخت محنت کے باوجود وزن میں کمی حاصل نہیں کر پاتے اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ نادانستہ طور پر کچھ ایسی غلطیاں کر رہے ہوں یا کچھ ایسی رکاوٹیں آپ کے راستے میں ہوں جو آپ کے جسم کا وزن کم نہیں ہونے دیتی۔ یہاں آپ کو ہم وجوہات بتاتے ہیں جن کی وجہ سے وزن کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ محنت کے باوجود وزن کم نہ ہونے کی سب سے پہلی وجہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ جی ہاں، ہمارے جسم کا 60% سے زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ جب جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو جسم کو چلانے والے کئی ضروری عوامل سست پڑ جاتے ہیں، جس کے سبب میٹابولزم کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کیلوریز کم جلاتا ہے۔ یوں بھوک اور پیاس میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اکثر پیاس کو ہی بھوک سمجھ کر پانی پینے کی بجائے کھانا کھانے پر زور دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جسم فاضل مادوں کو خارج کرنے میں ناکام رہتا ہے، جس سے سوجن اور وزن میں اضافے کا امکان ہوتا ہے۔ اس طرح کی کیفیت سے بچنے کے لیے دن کا آغاز نیم گرم پانی سے کریں۔ ہر کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی پینے کی عادت ڈالیں۔ خاص طور پر بیٹھ کر کام کرنے والے ہر گھنٹے بعد 1 یا 2 گھونٹ پانی پی لیں۔ اگر پانی پینے کا دل نہیں کرتا تو لیموں پانی، ناریل پانی، کھیرے یا پودینے والا پانی استعمال کریں۔ جسم میں پروٹین کی کمی بھی وزن روکنے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ پروٹین جسمانی ساخت، ہارمونز اور توانائی کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ وزن کم کرتے وقت اگر پروٹین کی مقدار کم ہو تو پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور صرف چربی نہیں بلکہ عضلات ضائع ہونے لگتے ہیں۔ انسان کا میٹابولزم بھی مزید سست پڑ جاتا ہے کیونکہ عضلات کیلوریز جلانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹس جلد ہضم ہو جانے سے جلدی بھوک لگ جاتی ہے، جبکہ پروٹین دیر تک پیٹ بھرا رکھتا ہے۔ انڈے، چکن، مچھلی، دالیں، چنے، لوبیا، دہی، پنیر، دودھ، بادام، اخروٹ، سورج مکھی کے بیج پروٹین حاصل کرنے کے بہترین ذرائع ہیں۔ وزن کم کرنے والے افراد اپنے ہر کھانے میں پروٹین کی تھوڑی مقدار ضرور شامل کریں۔ صبح ناشتے میں انڈا یا دہی، دوپہر کو دال یا چکن اور رات کو ہلکی پروٹین والی غذا جیسے سوپ یا سبزیوں کے ساتھ دال استعمال کریں۔ ضرورت سے کم کھانا بھی وزن کم نہ ہونے دینے کی اہم وجہ ہے۔ بہت سے لوگ وزن کم کرنے کے چکر میں سخت پرہیز شروع کر دیتے ہیں اور روزانہ بہت کم کیلوریز لیتے ہیں۔ بظاہر یہ بہت فائدے کی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بھوکا رہنے سے جسم سیف موڈ میں چلا جاتا ہے۔ توانائی بچانے کے لیے میٹابولزم سست ہو جاتا ہے، یعنی جسم چربی نہیں جلاتا بلکہ اسے محفوظ کرتا ہے کیونکہ اسے مستقبل میں مزید بھوک کا خدشہ ہوتا ہے۔ پٹھے ٹوٹتے ہیں اور عضلات کا خاتمہ میٹابولزم کو مزید کمزور کرتا ہے۔ مسلسل بھوکے رہنے کے بعد زیادہ کھانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، یعنی آپ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو دن بھر صرف ایک سیب اور ایک بسکٹ پر گزارا کرتا ہے، چند دن بعد شدید بھوک سے تنگ آ کر فاسٹ فوڈ کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کم مقدار میں مگر بار بار کھائیں۔ دن میں 5 سے 6 چھوٹے کھانے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ ایسی غذا لیں جو غذائیت سے بھرپور ہو، جیسے دالیں، انڈے، سبزیاں اور نٹس۔ خود کو مکمل بھوکا نہ رکھیں بلکہ متوازن غذا کا انتخاب کریں۔ کھانے کی روٹین نہ ہونا بھی وزن کم کرنے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر آپ نے کھانے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا اور آپ کبھی بھی کچھ بھی کھا لیتے ہیں تو یہ عادت وزن کم کرنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جسم وقت کے مطابق تیار ہوتا ہے۔ جب آپ بے وقت کھاتے ہیں تو ہارمونی نظام متاثر ہوتا ہے۔ وقت پر ناشتہ نہ کرنے سے دن بھر کی توانائی متاثر ہوتی ہے اور بھوک کا توازن بگڑتا ہے۔ صبح کے ناشتے کو ایک انجن کی حیثیت حاصل ہوتی ہے جو دن بھر جسم کو حرکت میں رکھتا ہے۔ اگر آپ ناشتہ چھوڑ دیں تو دوپہر یا شام کو غیر متوقع بھوک لگے گی جو اوور ایٹنگ کا سبب بنتی ہے، جبکہ رات کو دیر سے کھانے سے ہاضمہ سست ہو جاتا ہے اور جسم چربی کو محفوظ کرنے لگتا ہے۔
वजन कम करने के लिए जरूरी है कि खाने के औकात तय किए जाएं। नाश्ता 8 बजे, दोपहर का खाना 1 बजे और रात का खाना 7 बजे खाना चाहिए। रोजाना नाश्ता करें, चाहे वो हल्का हो, जबकि सोने से कम 3 घंटे पहले खाने की कोशिश करें। बाजार के बने खाने भी इंसानी वजन कम नहीं होने देते। बाजारी या पैक शुदा खाने आज के दौर में आम हो चुके हैं। ये ग़िज़ाएं कैलोरी से भरपूर और ग़िज़ाइयत से खाली होती हैं। इनके इस्तेमाल से इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, जिससे जिस्म चर्बी ज़ख़ीरा करने लगता है। खाने के फ़ौरन बाद दोबारा भूख लगती है, क्योंकि ये ग़िज़ाएं जल्दी हज़म हो जाती हैं। एक तहकीक के मुताबिक जिन लोगों ने सिर्फ प्रोसेस्ड फूड को कम किया, उनके वज़न में बग़ैर किसी सख्त डाइट के वाज़ेह कमी देखने में आई। कोल्ड ड्रिंक्स, पैक जूसेस, बिस्किट, चिप्स, केक, फास्ट फूड, चटपटे स्नैक्स जैसी चीज़ों में कैलोरीज की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लिहाजा चिप्स की जगह भुने हुए चने, कोल्ड ड्रिंक की जगह लीमू पानी और बिस्किट की जगह फ्रूट या खजूर का इस्तेमाल बेहतर है। वजन में कमी के हवाले से गलत अंदाजे लगा लेने से भी वजन पर कोई असर नहीं पड़ता। अक्सर लोग वजन कम करने का सफर शुरू करते ही फौरी नतीजे की उम्मीद भी लगा लेते हैं और ये सोचने लगते हैं कि 1 हफ्ते में 5 किलो कम हो जाए, बगैर वर्जिश के सिर्फ खाने से वजन कम हो जाए या 1 महीने में मॉडल जैसा जिस्म बन जाए। गलत अंदाजे लगाने का नतीजा जल्द ही मायूसी में तब्दील हो जाता है, सेहत को नुकसान पहुंचता है और साथ ही तसलसल कायम नहीं रह पाता। असल में इतनी जल्दी तब्दीली मुमकिन नहीं। ज़्यादा तेज़ रफ्तारी नुकसानदेह डाइट्स या सप्लीमेंट्स की तरफ ले जाती है और लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। दूसरी जानिब हकीकत में 1 हफ्ते के दौरान 500 ग्राम से 1 किलो वजन कम होना ही सेहतमंद तरीका है। आहिस्ता और मुसलसल वजन में कमी ज्यादा पायदार और देरपा होती है। वजन कमी के मकसद को हासिल करने के लिए हफ्तावार अहदाफ मुकर्रर करें, रोजाना 20 मिनट वॉक करें, खुद को जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर मजबूत रखें और नताइज की बजाय अमल पर तवज्जो दें। ज्यादा देर तक बैठे रहने का मामूल भी सेहत पर बुरे असरात डालता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जदीद दौर में बैठे रहना एक आम आदत बन चुकी है। दफ्तर, गाड़ी, मोबाइल और टीवी ने हमारी जिस्मानी सरगर्मी को बहुत कम कर दिया है। एक जगह पर बैठे रहने से जिस्म चर्बी को ज्यादा जमा करता है और कम जलाता है। पट्टे गैर फाल हो जाते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म मजीद कम हो जाता है। खास तौर पर अगर खाने के बाद फौरन बैठा जाए तो हाजमा मुतासिर होता है। देर तक बैठे रहने वाले अफराद को चाहिए कि हर 30 मिनट बाद 5 मिनट का वक्फा लें और थोड़ी चहलकदमी करें, सीढ़ियां इस्तेमाल करें, लिफ्ट से परहेज करें, काम के दौरान स्टैंडिंग डेस्क या कदम चलाने वाले आले को इस्तेमाल करें, फोन पर बात करते हुए भी चहलकदमी करें। यहाँ पर तिब्बी वजूहात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनकी वजह से भी वजन में कमी के खातिरख्वाह रिजल्ट नहीं मिलते। कुछ तिब्बी मसाइल ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी में वजन कम करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, चाहे आप कितनी ही कोशिश करें। आम बीमारियों में शामिल है थायराइड का कमजोर होना, जिसमें मेटाबॉलिज्म बहुत सुस्त हो जाता है और जिस्म कैलोरीज को जल्दी नहीं जलाता। इसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। ये मर्ज खवातीन में आम है और वजन बढ़ने के साथ साथ चेहरे पर बाल और महासे जैसी अलामात का बायस बनता है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस में इंसुलिन खून से शुगर को खलियात तक पहुंचाने में नाकाम रहती है, जिससे जिस्म चर्बी बनाना शुरू कर देता है। नींद की बीमारियों की वजह से जिस्मानी निज़ाम बिगड़ जाता है। इन मसाइल में अगर वजन कम करने में नाकामी हो रही हो तो लाजमी डॉक्टर से मुकम्मल चेकअप करवाएं। ब्लड टेस्ट, थायराइड लेवल, इंसुलिन लेवल वगैरह चेक करवाने के बाद ही ग़िज़ा, दवा और वर्जिश का प्लान बनाया जाए। वजन में कमी के लिए नींद का ख्याल रखना भी जरूरी है। नींद को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, हालांकि ये जिस्म के तमाम अफ़आल के लिए बुनियादी अहमियत रखती है। नींद के दौरान जिस्म मरम्मत, सफाई और हार्मोनी तवाज़ुन का काम करता है। अगर नींद पूरी ना हो तो हार्मोन्स गैर मुतवाज़न हो जाते हैं, जैसे लेप्टिन और ग्रेलिन, जो भूख और पेट भरने के एहसास को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा दिमागी थकन की वजह से फैसला करने की सलाहियत मुतासिर होती है और लोग गैर सेहतमंद खानों की तरफ राग़िब हो जाते हैं। सुस्ती और काहिली पैदा होती है, जिससे जिस्मानी सरगर्मी कम हो जाती है। चीनी और कैफीन की तलब बढ़ जाती है ताकि थकावट को दूर किया जा सके, जो वजन बढ़ने की बड़ी वजह बनती है। नींद पूरी करने के लिए इन हिदायत पर अमल करें। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल या स्क्रीन बंद कर दें। रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं। पुरसुकून माहौल में सोएं। अंधेरे और खामोशी में नींद बेहतर आती है। कैफीन वाले मशरूबात, चाय, कॉफ़ी सोने से कम 4 घंटे पहले तर्क करें।
वजन में कमी के लिए जहनी दबाव पर काबू पाना भी बहुत जरूरी है। जहनी दबाव ना सिर्फ जहन बल्कि जिस्म पर भी बुरे असरात डालता है। जब आप परेशानी या तनाव में मुब्तला होते हैं तो आपका जिस्म कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा पैदा करता है। ये हार्मोन भूख बढ़ाता है, खास तौर पर मिठास, चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट्स की तलब ज्यादा हो जाती है। तनाव के दौरान लोग अमूमन इमोशनल ईटिंग करते हैं, यानी जिस्मानी जरूरत की बजाय दिल की तस्कीन के लिए खाते हैं। स्ट्रेस से नींद मुतासिर होती है, जो मजीद वजन बढ़ने का सबब बनती है। मिसाल के तौर पर एक खातून जो मुसलसल दफ्तर के दबाव में रहती है और दिन भर का तनाव कम करने के लिए घर आकर मिठाई या फास्ट फूड खाती है और अगले दिन खुद के लिए बुरा महसूस करती है। जहनी दबाव से बचने के लिए मुराकबा या योगा का सहारा लें। गहरी सांस लेने की मशकें दबाव कम करने में मदद देती हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट चहलकदमी करें। तनाव का हल गुफ्तगू, मशगले या थेरेपी के जरिए तलाश करें। आखिर में ये कहेंगे कि वजन कम करना मुकम्मल तब्दीली का नाम है। ये समझना बहुत जरूरी है कि वजन कम करना सिर्फ कैलोरीज या एक्सरसाइज का मामला नहीं, बल्कि जिस्म, जहन और तर्ज जिंदगी के मुकम्मल तवाजुन का अमल है। अगर आप इन 10 वजूहात को पहचान कर इन पर अमल शुरू करेंगे तो वजन का कम होना ना सिर्फ मुमकिन होगा बल्कि देर पा भी होगा। हर दिन एक नया मौका है। अगर आज आप थोड़ी सी भी बेहतरी लाते हैं, जैसे बेहतर नींद, थोड़ा पानी, कुछ कदम, एक सेहतमंद खाना, तो ये सब चीजें मिलकर आपको बेहतर सेहत और कम वजन की तरफ ले जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें।